Hello, good afternoon to everyone. I am Rachita Jayal and I am rank number 215 of 2014 Civil Service Examination. I hail from Dehradun and you would know that obviously this is capital of Uttarakhand. Apart from that, my optional was public administration, and today I am here to discuss the basic strategy that I had adopted when I was preparing for civil services. So let's start with the kind of request that I'm getting. There are, I would say, two type of aspirants, and let me add one thing that I would try to speak both in English and Hindi, because I know there are a lot of people who would want me to speak in Hindi also, but I would not refer any books because Hindi medium की किताबों का मुझे खास idea नहीं है. My medium was English, so I would tell you the strategy, but the strategy can be adopted by anybody. So let me put it in both the languages. So the request that I have been getting is from the aspirants who can be divided into two groups. वो जो स्कूल जाते हैं बच्चे, उनके भी काफ़ी मैसेजेस आते हैं कि हम लोग स्टैंडर्ड 9th-10th में हैं, what should we do for preparation, is it too early. Then there are people who have graduated 12th and उनको प्रिपरेशन करनी है नेक्स्ट 2-3 years में, दे आर गिविंग एग्जाम. सो लेट मी फर्स्ट जस्ट टच अपॉन द टॉपिक दैट दोज हु आर इन स्कूल, जो स्कूल में हैं वो क्या कर सकते हैं so that their examination skills improve. I would say when you are in school, you don't have to go deep into the syllabus, you don't have to get deep into the strategy. You can brush up some of your skills. कुछ आपकी ऐसी skills हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं civil services के लिए, and you have a lot of time in hand. So over a period of time you can become an avid reader. First of all, start reading. इट डजेंट मैटर वॉट काइंड ऑफ सब्जेक्ट यू आर रीडिंग. ज़रूरी नहीं है कि आप अपने स्कूल की किताबें या इंटेलेक्चुअल किताबें पढ़ें या फिर आप नॉवेल्स पढ़ते हैं, एनीथिंग, बट इट डिपेंड्स. राइट नाउ यू हैव टू ब्रश अप योर रीडिंग स्किल. तो बेसिक फोकस आपका रीडिंग स्किल पे हो. अपार्ट फ्रॉम दैट, जब आप रीडिंग की हैबिट डेवलप कर रहे हैं, मैं कहूँगी कि बुक्स को रीड करना एक चीज़ होती है, न्यूज़पेपर को रीड करना इज़ अ लिटिल डिफरेंट, बिकॉज न्यूज़पेपर्स आर मोर फॉर्मल एंड रीडिंग देम टेक्स अ लिटिल मोर टाइम एंड इंटरेस्ट. तो आप न्यूज़पेपर्स को भी पढ़ना शुरू कर दें, दैट विल बी वेरी क्रूशियल फॉर योर प्रिपरेशन. एंड ये रीडिंग की हैबिट के साथ साथ यू शुड डेवलप हैबिट ऑफ राइटिंग डाउन ऑल्सो. सो इफ़ यू आर अ स्कूल गोइंग चाइल्ड, आई वुड अगेन से दोज हु आर कनेक्टिंग टू मी नाउ कि मैं स्ट्रैटेजी समझा रही हूँ कि जो स्कूल के बच्चे हैं वो रीडिंग और राइटिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें. एंड व्हेन यू आर राइटिंग डाउन, you should understand that your imagination and your thought process should improve in that whole process, because over a period of time आपके पास बहुत सारा knowledge होगा when you are preparing for civil services, but how do you express it in one little answer, that becomes very important. So this is for the school going kids. Apart from that, let's come to those who are going to appear in a year or two in the civil service examination. So अगेन देर आर सम पीपल हु डू नॉट लाइक रीडिंग. रीडिंग का मैंने आपको बता दिया है कि इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. देर आर पीपल हु डू नॉट लाइक रीडिंग एंड दैट इज़ नॉर्मल. यू कैन ऑलवेज स्विच ऑन टू बेटर प्लेटफॉर्म्स ऑफ इंटरेक्शन. यू कैन ऑब्वियसली गेट टू द सोर्सेज लाइक वीडियोज़, यू कैन गो फॉर मूवीज़ एंड ऑल. बहुत इंटेलेक्चुअल चैनल्स भी हैं आजकल, एंड उन चैनल्स के माध्यम से भी आप अपने जो सोर्स है उसको डाइवर्सिफाई कर सकते हैं. बट बेसिक रीडिंग इज स्टिल वेरी इंपॉर्टेंट नाउ. So this is about the basic skills that you require and what habits you can develop. Let's come up on those people who are going to appear and they have been asking me कि मैम शुरुआत कैसे करी जाए. So you should first of all have your syllabus ready. सिलेबस का मतलब ये नहीं है कि आप प्रीलिम्स की अलग स्ट्रैटेजी बनाएं और मेंस की अलग. माय स्ट्रैटेजी वाज कि आप मेंस पे फोकस करें. मेंस का सिलेबस निकालिए और मेंस के सिलेबस में जो भी टॉपिक्स हैं उनके अकॉर्डिंगली यू नो व्हाट पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स आर देयर फॉर जनरल स्टडीज़, जैसे कि हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस एंड डिफरेंट अदर सब्जेक्ट्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड अ लॉट ऑफ मोर, एंड इट इंक्लूड्स करंट अफेयर्स ऑल्सो. ये सारा सिलेबस निकालिए और अब इस सिलेबस को आपको, इसमें जो बुक्स हैं, बेसिक बुक्स हैं, उसके उन बुक्स को आपको अपने पास लाना होगा. सो दोज बुक्स, सम पीपल से दैट दे रीड NCERT, बट आई विल टेल यू दैट आई हैव नेवर रेड NCERT बिकॉज NCERT बहुत बेसिक बुक्स होती हैं. मेरा स्ट्रैटेजी ऑफ प्रिपरेशन वॉज कि आप ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन की बुक्स को पढ़ें, तभी जाके आपका जनरल स्टडीज़ में एक लेवल बनेगा.
बिकॉज यू हैव टू ऑलवेज थिंक कि जब आप एग्ज़ाम के लिए अपेयर कर रहे हैं, आप फॉर एग्जाम्पल जनरल स्टडी में हिस्ट्री का आंसर लिख रहे हैं, दैट आंसर इज ऑल्सो बीइंग रिटन बाय समबडी जिसका हिस्ट्री का ऑप्शनल होगा. तो आपका जो कंटेक्स्ट है आंसर का, इट हैज़ टू बी रियली ऑफ हाई लेवल. And for that you need to read books and have material which has that sort of context. So I will always say कि अगर आप NCERT पढ़ते हैं, good enough. If you are from an ICSE board and you've never read NCERT books, please do touch upon them. But mostly you should go for a graduation or post graduation level book for history, geography, political science, which all the subjects which are included for your general studies. So this is basic strategy of general study that I am telling you. एक बार आपके पास बुक्स के नाम आ गए हैं, एंड यू नो व्हाट बुक्स यू लाइक एंड व्हाट आर द बुक्स दैट आर बीइंग रेकमेंडेड इन डिफरेंट कॉलेजेस, आप उसके थ्रू भी आप बुक्स ले सकते हैं. जैसे मैंने हमेशा कॉलेजेस की बुक्स ली, कुछ ऑप्शनल जिनके पास थे उनसे मैंने पूछा कि आप कौन सी बुक्स पढ़ते हैं, तो जनरल स्टडीज़ में वो बुक्स ली. अब बुक्स में आपके ऐसा नहीं कि आप 10-20 बुक्स उठा कर रख लें और उन सबको पढ़ें. यू हैव टू कैटेगराइज बुक्स. एक आपको बेसिक बुक चाहिए होगी सब सब्जेक्ट की, जिसको आप जब चाहें यू कैन जस्ट पिक इट अप एंड रेफर टू इट. उस बुक को आप बार बार पढ़ सकते हैं, उस बुक को आप हैंडी रख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर आप हिस्ट्री की बेसिक बुक को उठाते हैं, तो यू कैन हैव अ बुक फॉर एंशियंट इंडिया, फॉर मॉडर्न इंडिया, फॉर आर्ट एंड कल्चर, लाइक दैट. फॉर वर्ल्ड हिस्ट्री यू विल ऑब्वियसली हैव अनदर बुक. बट वॉट यू कैन ऑल्सो डू इज यू कैन हैव वन बेसिक बुक फॉर इंडियन हिस्ट्री, जिसपे एंशियंट, मॉडर्न, आर्ट एंड कल्चर सब आ जाए. जब आपकी वो बेसिक बुक बन गई है आपकी, यू कैन ऑलवेज राइट डाउन नोट्स इन दैट, यू कैन ऑलवेज अंडरलाइन इट. वो आपके लिए एक नोट की तरह ही काम आएगी. फिर देर इज़ अनदर कैटेगरी ऑफ बुक, सप्लीमेंट्री बुक्स. अगर आपको लगता है किसी सब्जेक्ट में आपको बेटर करना है, या फिर आपको किसी सब्जेक्ट में और नॉलेज चाहिए, यू वांट टू डेवलप डीपर इन द इशू और द सब्जेक्ट वट एवर इट इज़, तो आप सप्लीमेंट्री बुक ज़रूर रखें. ऑथेंटिक ऑथर्स को लें और उसमें और आप लोग रीडिंग कर सकते हैं. एंड आई विल ऑल्सो से दैट फॉर ऑल द टॉपिक्स एंड सब्जेक्ट इंटरनेट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट. नेट से आप जितने भी रिसर्च पेपर्स उठा सकते हैं जो आप पढ़ सकते हैं, उनको देखिए. आपका कोई इंटरेस्ट है वीडियोस वगैरह देखने में, आप जैसे मॉडर्न हिस्ट्री के आप वीडियोस देख सकते हैं, कोई फ्रेंच रेवोल्यूशन और एनीथिंग, दोज वीडियोस कैन बी वॉच. एंड दिस स्ट्रैटेजी इज सेम फॉर ज्योग्राफी ऑल्सो. Now, once we have decided what books we want, I should tell you that it is very important to ask yourself what is your strength and what is your weakness. There are two things. एक ऐसे सब्जेक्ट होंगे जहाँ पे आपका फाउंडेशन बहुत अच्छा है, that is your strength. You don't have to develop your foundation in that again. You can always go for higher books. You can always see old question papers. उसके आप questions को डील करना शुरू कर दें, और उसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी योर स्ट्रेंथ. फॉर एग्जाम्पल देर इज़ एन एस्पिरेंट जिसका स्ट्रेंथ साइंस है, तो उसको साइंस में उतना ज़्यादा बेसिक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. पुराने क्वेश्चन पेपर्स को उठा के देखें और फिर उन्हें जो लगता है उस हिसाब से उसकी पढ़ाई करें. बट अगर फॉर एग्जाम्पल देर इज़ द सेम एस्पिरेंट इज़ देयर एंड उसका वीकनेस इज़ मैथ्स, सो आपको CSAT क्रैक करने के लिए मैथ्स चाहिए, यू रिक्वायर ब्रशिंग अप दैट सब्जेक्ट, so you should know which is your weakness so that you can every day brush up that subject. You can put more effort and time in that particular subject. So I would say कि strength और weakness को please categorize कर लीजिए, क्योंकि होगा क्या कि एक particular पेपर में आपके मार्क्स बहुत कम हो जाएंगे because it was your weakness and you never put any more effort in that. तो आपको हर पेपर में एक एवरेज नंबर तो लाना ही है, कोई पेपर आपका वीकनेस बन के ना रह जाए, ये चीज़ आपको देखना है. सो यू हैव टू लेवल अप योर स्किल्स इन एवरी पेपर टू अ पर्टिकुलर एवरेज लेवल, और जो आपका स्ट्रेंथ है उसके बाद यू विल डू गुड इन दैट फॉर श्योर. So this was first about the books, and then the strategy of how to divide your time and what are your strengths and weakness. Now I would like to also tell you that there are people who ask me about time management. Time management, see, you can always have your own strategy जैसा आप चाहते हैं, but my time management was always day wise and 3 months wise. सो व्हाट आई वुड डू इज़, मैं जो भी लेंदी सब्जेक्ट्स होते थे, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी काफ़ी लेंदी सब्जेक्ट्स हैं, आपका इंटरेस्ट भी होगा उन सब्जेक्ट में, लेकिन आपका अगर उसमें बहुत ज़्यादा अच्छा बैकग्राउंड नहीं है, यू आर नॉट अ आर्ट्स स्टूडेंट, तो आपको पढ़ना पड़ेगा. एंड फॉर UPSC यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच ऑलवेज, irrespective of what background you were from. So जो लेंदी सब्जेक्ट्स हैं उनको मैंने पहले पिकअप करा और उनको मैंने 3 मंथ्स तक पढ़ा, 2 सब्जेक्ट को 3 मंथ्स तक पढ़ा. जैसे हिस्ट्री सुबह पढ़ी, ज्योग्राफी शाम को पढ़ी, 3 मंथ्स आई डिवोटेड टू दैट सब्जेक्ट. एंड एवरी डे ऑल्सो आई वुड डिवोट टाइम फॉर करंट अफेयर्स.
and every day I would also devote 1 hour for a subject which was weak, जो मेरा weakness था. So 3 months के बाद फिर आप अपना strategy change, अपने subjects को change कर सकते हैं, time table change कर सकते हैं. For again then another 3 months you can have other subjects going on. This way you will also look upon the current affairs, you will also manage the day, you will also manage in a longer run the longer subjects that are there जिसमें syllabus ज़्यादा है. Okay, so let's come to current affairs. In a short in a brief only I will let you know current affairs का मेरा क्या strategy था. So for current affairs you should always go for authentic sources first. You should read newspapers, but what sort of newspapers you have to read? You cannot read every local newspaper, so please pick up 1 or 2 quality newspapers that all the aspirants or people generally who are preparing they read. Secondly, आप जो magazines pick करते हैं जैसे योजना, कुरुक्षेत्र, these are all governmental magazines, they are authentic, you should read that. अपार्ट फ्रॉम दैट करंट अफेयर्स में आपको कुछ साइट्स होंगी गवर्नमेंट की, कुछ गवर्नमेंट के एनुअल रिपोर्ट्स होंगे, गवर्नमेंट की कुछ पब्लिशिंग होंगी, दे आर वेरी हैंडी, यू कैन ऑलवेज रिफर टू दैट. अगर आप किसी ऐसे सोर्स को रिफर कर रहे हैं जो बहुत ऑथेंटिक नहीं है तो आप उसको प्लीज़ चेक कर लें, वेरीफाई कर लें. यू डोंट हैव टू लर्न फैक्ट्स, you don't have to always go after highlights. आपको उन पर्टिकुलर करंट अफेयर के टॉपिक्स को ज़्यादा फोकस करना चाहिए. आई यूज टू फोकस ऑन दोज टॉपिक्स जिनका एक इम्पैक्ट है कंट्री पे, जिनका एक बैकग्राउंड है. सो नाउ व्हेन यू हैव अ टॉपिक विच इज़ रिलेटेड टू फॉर एग्जाम्पल से इलेक्शंस, तो वो एक टॉपिक है जो पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड है. सो इट इज़ अ टॉपिक ऑफ करंट अफेयर्स, इट हैज़ अ बैकग्राउंड. आप पॉलिटिकल साइंस से भी उसे पढ़ें, उसमें जो करंट अफेयर्स में हो रहा है उसे भी पढ़ें, एंड व्हाट इम्पैक्ट इट हैज़ ऑन द कंट्री, what is happening in the country, that is very important. So once you read, once you go for the background of the current affair, you touch upon the subject, उसके बाद आपको उसको एक थोड़ा सा अपना thought process डालना पड़ेगा, so that your brain starts processing the news in a manner that you can always write it down in your answers. प्लस इन करंट अफेयर्स को आप इस तरीके से भी पढ़ें कि कल के दिन आप किसी भी पर्टिकुलर आंसर में इनके एग्जाम्पल्स डाल सकें. सो दिस वाज माय स्ट्रैटेजी फॉर करंट अफेयर्स. ऑल्सो let's come to another topic where some people say आंसर राइटिंग का क्या करा जाए. सो आंसर राइटिंग का जहाँ तक स्किल की बात है, देर आर पीपल हु आर गुड एट राइटिंग. फॉर एग्जाम्पल मुझे हमेशा अपनी राइटिंग पे कॉन्फिडेंस था, मैंने कभी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं करी, बट इट वॉज माई स्ट्रैटेजी बिकॉज आई न्यू दैट इज़ माई स्ट्रेंथ. अगर आपकी ये स्ट्रेंथ नहीं है, आंसर राइटिंग इज़ योर वीकनेस, please regularly brush up your skill of answer writing. Whatever you read, write it down. Once you write it down, ask other people to read who are preparing along with you, or if there is a senior who can help you out, उन्हें पढ़वाइए, and please take the feedback in a very positive manner so as to improve your answer writing skill. So आंसर राइटिंग स्किल को वही लोग ज़्यादा ब्रशअप करें जिनको कॉन्फिडेंस नहीं है अपने आंसर राइटिंग में. So according to as I said, your strength and weaknesses, you can obviously create a strategy for answer writing also, and regularly brush up your skill. आंसर राइटिंग में हमेशा एग्जाम्पल्स को, करेंट एग्जाम्पल्स को, इंटरडिसिप्लिनरी एग्जाम्पल्स को, यानी अलग अलग सब्जेक्ट्स के एग्जाम्पल्स को डालना की कोशिश करिए. अपार्ट फ्रॉम दैट, स्टार्ट मेकिंग फ्लो चार्ट्स, मेक डायग्राम्स दैट improves your whole that package of your answer writing becomes really nice. It becomes interesting, more interesting. Okay, and it is also very understandable, I would say, when somebody is reading your answer and there is a diagram to it or a flow chart to it, so वो समझने में बहुत आसान हो जाता है. उससे पता चलता है कि आपका जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक है वो काफ़ी अच्छी है और सिंपल वर्ड्स में आप उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं. देयर इज़ नो यूज़ ऑफ यूजिंग फैंसी वर्ड्स और वोकैबुलरी. इस पे आप बिल्कुल मत जाइए कि हमारे पास वोकैबुलरी अच्छी नहीं है, हम इंग्लिश में बहुत प्लेन लिखते हैं, हम हिंदी में बहुत प्लेन लिखते हैं. दैट वुड नॉट मैटर एज लॉन्ग एज यू कैन रियली टच अपॉन द प्रैक्टिकल थिंग ऑफ द आंसर, द राइट थिंग. बहुत थियोरिटिकल भी नहीं करना है आपको आंसर, उसमें प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स भी देने हैं और उसका कंटेक्स्ट को बहुत अच्छा रखना है. सो दैट इज़ शॉर्ट एंड क्रिस्पी आंसर्स की राइटिंग की प्रैक्टिस आप कर सकते हैं. सो दैट इज़ बेसिकली अ स्ट्रैटेजी फॉर आंसर राइटिंग इफ इट इज़ नॉट गुड. नाउ essays. So again, those who are not very confident with answer writing,
आपको एस्से की राइटिंग की भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. बट इफ़ यू आर वेरी कॉन्फिडेंट विद योर आंसर राइटिंग, अगेन यू हैव टू डू सम प्रैक्टिस ऑफ एस्से राइटिंग, so that when you are there in the exam, you suddenly do not go with a trial and error method. आपको पता होना चाहिए कि मुझे क्या करना है. एक बेसिक स्ट्रक्चर ऐसे का कैसे बनाया जा सकता है. कंटेक्स्ट क्या होगा वो तो आपको वहीं पता चलेगा एकदम से. व्हेन द सब्जेक्ट टॉपिक इज़ देयर, आपके मन में क्या ख्याल आते हैं उस आंसर राइटिंग ऐसे को लेकर, वो वहीं पे आपको एकदम से पता चलेगा. यू कैन नॉट प्रिपेयर द कंटेक्स्ट, बट यू कैन ऑलवेज मैनेज द बॉडी ऑफ द and the introduction and the conclusion of the essay. Now some people go for the idea कि हम शुरुआत करें कुछ particular quotation से, end करें कुछ quotation से. I would say these are very old ideas. आप कुछ innovative ideas लेके आएँ. You can start with a story which is practical, related to the topic, or you can start with your own understanding of the topic, or you can interchange. You can conclude with a story, or you can in the conclusion write your own understanding of it. Then whenever you are writing an essay, it is not important. For example, when I wrote an essay, I did not write a very balanced view in the essay, but I got good marks enough in that. So you can always, if you're confident that this topic requires taking a stand, प्लीज़ राइट डाउन दैट. डोंट थिंक कि बैलेंस में ही सारा काम चलता रहेगा. आप कॉन्फिडेंट होने चाहिए कि आई हैव इनफ रीजनिंग टू टैकल दिस टॉपिक टेकिंग वन स्टैंड. यू कैन राइट इट डाउन. बट देन वेन एवर यू स्टार्ट विद एस्से राइटिंग, आप टॉपिक पढ़ें और एक रफ आइडिया लिख लें दैट दीज आर द पॉइंट आई वांट टू राइट इन द एस्से. सो व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग एस्से, आपका फ्लो कहीं और जैसे जाता है. प्लीज़ रेफर टू दोज पॉइंट्स, जिससे एक स्ट्रक्चर, एक बॉडी इम्प्रूव हो जाए आंसर एस्से की. So that is one way of tackling essays. Also essay में हमेशा अगर आप इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच रखें, आपने साइकोलॉजिकल व्यूज़ डालें, आप उसमें हिस्टोरिकल पॉइंट डाल सकते हैं, आप उसमें सोशोलॉजी का कुछ टॉपिक डाल सकते हैं, बट द टॉपिक शुड बी रेलिवेंट, उसी से रिलेटेड हो, तो ऐसे बहुत इंटरेस्टिंग बन जाता है. तो दैट थिंग यू कैन प्रैक्टिस, एंड दैट प्रैक्टिस विल हेल्प यू बिल्ड कॉन्फिडेंस कि वहाँ पर जाके आपको टाइम वेस्ट ना करना पड़े. Now this was essay writing. Okay, let's come to optional. So my optional was public administration. Now some people ask me what optional to choose, the basic criteria, basic question. There are particular people who go for very famous optionals. So आपका क्राइटेरिया ये नहीं होना चाहिए कि कौन से ऑप्शनल फेमस है या वॉट एवर इट इज़. आपको अपना रिक्वायरमेंट पता होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट अ सब्जेक्ट बिकॉज यू हैव रेड इट, it was your background, or you are very, also you should have interest in it. If you find it very interesting that you can read it day and night, then you should pick that subject, whatever it is, irrespective whether it is very famous among toppers or other people or not. You should have confidence in your subject. अगर आप कोई नया सब्जेक्ट पिक करना चाह रहे हैं बिकॉज आपने अभी तक जितने भी सब्जेक्ट पढ़े हैं, लाइक इन योर ग्रेजुएशन और earlier, you don't find a lot of interest in that, then I think the criteria is find a subject which has short syllabus, and also when you try to figure out which subject you should choose and it is new to you, you should first read a little about the subject. अगर आपको इंटरेस्ट बनता है उसमें तो ही उसे पिक करेगा. इफ़ यू थिंक दैट you don't find it very interesting, though it's a new subject with a very short syllabus, please do not pick that subject, because interest is a very important thing. आपको सब्जेक्ट में एक नैक डेवलप करनी है, and you are competing with people who are professionals, who have done a lot of study in their subject. They might be getting into research level of the subject, so therefore interest in the subject is very important. For example, I am a management graduate, and I had this particular dilemma of whether to take psychology or public administration. Psychology was completely new for me. I liked the subject a lot and I used to read it casually, but I had a very good knack in public administration, because my management part of the public administration was very strong, and I knew that I can fetch really good marks in that. कोई भी question आ जाए तो मैं उसे कर लूँगी. Now once you are done with your optional, like you choose your optional, please choose it early, क्योंकि optional को आप जितना समय देंगे उतना आपका optional improve होगा. You cannot go with the strategy that first you finish off with your general study books and then pick up your optional. Please, when you sit for preparation, do this homework, this basic foundation thing of choosing your optional. Once you choose your optional, it should get a lot of time. You can read it every day. Or another strategy is कि आप अपना optional
पढ़कर रख लें और फिर उसको बीच बीच में रिवाइज करते रहें, या फिर उसमें कोई सॉरी सो येस आई वाज सेइंग दैट ऑप्शनल का एक और स्ट्रैटेजी है कि आप ऑप्शनल पहले करके रख दें पूरा, सो दैट व्हेन यू बिगिन विद योर जनरल स्टडीज तो आप अपने ऑप्शनल में अदर सप्लीमेंट्री बुक्स को पढ़ सकें. आई विल नॉट lie to you, but I have read more than 50 books in my ऑप्शनल बेसिक बुक्स अलग अलग ऑथर्स की, क्योंकि सब ऑथर का अपना ओपिनियन होता है. आपको एक ऑल ओवर सारे ओपिनियंस, एक 360 डिग्री व्यू चाहिए अपने ऑप्शनल का, एंड यू शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग इन इट. सो दैट इज़ द स्ट्रैटेजी फॉर ऑप्शनल. अपार्ट फ्रॉम दैट there are people who would also ask questions about those particular papers which are just passing. There are people, especially जो इंग्लिश मीडियम के हैं, वो कई बार ये सवाल पूछते हैं कि हिंदी में किस तरीके से क्या प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है या नहीं. प्लीज़ मेक श्योर कि आप उस पेपर में पास होएं ज़रूर. अगर आपका वीक है कोई सब्जेक्ट जो भी पासिंग सब्जेक्ट है, तो उसमें भी आपको ज़रूर वर्क करना है. सो बेसिक स्ट्रैटेजीज़ कि आप स्ट्रेंथ और वीकनेस को जब आपने एक बारी एनालाइज कर लिया है, तो सारे आपके जो सब्जेक्ट्स हैं वो एक पर्टिकुलर लेवल पे आ जाएं. एंड उसके बाद जिन सब्जेक्ट्स में आप अपना स्ट्रेंथ बनाना चाहते हैं, आपके ऑप्शनल्स हैं, करंट अफेयर्स हैं, तो उनमें आप रिसर्च लेवल तक की स्टडी कर सकते हैं. बट बेसिक फाउंडेशन के लिए आपको बेसिक बुक्स कुछ अपने लिए रखनी होंगी. नाउ अनदर क्वेश्चन दैट कम्स इज हाउ शुड वी मेक नोट्स. सो for I think general studies, I have never made notes. I told you that when you start choosing your books, जब भी आप अपने बुक्स को सिलेक्ट करने लगते हैं, तो उसमें एक बेसिक बुक्स होती हैं और एक सप्लीमेंट्री बुक्स आप ज़रूर रखें. बेसिक बुक वो बुक है जिसे आप बार बार पढ़ सकते हैं, जिसमें सब कुछ है उस सब्जेक्ट के बारे में, और जब भी आपको रेफ़र करना, यू गो बैक टू दैट बुक एंड यू कैन रेफ़र. Now, for me, that book was my note. Why? Because if I start writing notes, I'll make another book and I will never get a time. I will never get any time to read those notes. So it is not advisable कि आप एक और पूरा notes जो है ऐसे books type की बना दें, because there is no time for revision sometimes. And so you read that book. That was my strategy. And अगर आपको कुछ notes बनाने हैं, तो you can always put a note in a blank paper and attach to your book at the time where at the place where the chapter is there, or on the sides you can always write something down, whatever you want to. So basic books को ही आप अपना मान के चलें. अगर आपका कोई वीक सब्जेक्ट है, कोई ऑप्शनल है, जिसमें आप नोट्स बनाए बिना नहीं, बिल्कुल भी आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है, तो आप एक बहुत बेसिक नोट्स बनाएं. सो नोट्स वुड नॉट मीन दैट यू राइट एवरीथिंग अबाउट whatever topic you are putting down, jotting down on the paper. Note would mean आप बुलेट पॉइंट्स लिख सकते हैं, सो एज टू रिकॉल कि ये सारी चीज़ें जो हैं मुझे पढ़नी है अच्छे से. फॉर करेंट अफेयर्स ऑब्वियसली यू विल हैव टू मेक नोट्स. सो देर इज़ अनदर सब्जेक्ट जहाँ पे मैंने नोट्स बनाए. इट वॉज करेंट अफेयर्स बिकॉज आई यूज टू रीड योजना, आई यूज टू रीड कुरुक्षेत्र, आई यूज टू रेफर all the sites like Press Bureau of India and whatever government compilations were there or reports were there, for example Law Commission or financial or any annual reports are there. You should read those reports. But apart from making of notes, when you make notes of current affairs, you should you can make a diagram and you don't have to write a lot, because आप जितना लिखेंगे उतना difficult होगा आपको revise करना. You can make a diagram that this is the topic, this topic has this particular impact on the country, this topic has this particular background, and this topic has this these are the problems related to the topic and these are the solution to the topic. So वो current affair का एक पूरा आपका जो topic है वो आप एक particular flow diagram में या whatever kind of chart you want to make उसमें आप complete कर सकते हैं. You don't have to write lengthy notes. You have to make notes in a way कि जब आप उसे देखें तो आपको एकदम समझ आ जाए कि ये टॉपिक था क्या और मैंने इसमें क्या सोचा या पढ़ा था. सो उसके लिए मैं हमेशा डायग्राम वाइज नोट्स बनाया करती थी. दैट वाज वेरी इजी कि आप डायग्राम वाइज बनाएं. ऑल्सो करंट अफेयर्स की एक स्ट्रैटेजी और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इंडियन एंड इंटरनेशनल न्यूज़ दोनों पे फोकस करें और दोनों का इंटरकनेक्शन को समझने की कोशिश करें. व्हेनेवर यू हैव न्यूज़ विच इज़ गोइंग अराउंड इन द कंट्री,
उसका मैंने आपको बताया कि आप उसका बैकग्राउंड पढ़ें और उसका जो इम्पैक्ट है कंट्री में वो पढ़ें. इफ़ इट्स अ प्रॉब्लम, वाई देर इज़ अ प्रॉब्लम लाइक दैट, इट रिक्वायर्स सोल्यूशन, यू थिंक दैट दीज आर द सोल्यूशन दैट आर कमिंग अप. अगर आप पे और कोई आइडियाज़ हैं तो आप उसको भी लिखिए. अगर आपको लगता है इसके इंटरनेशनल रिलेशन पे इम्पैक्ट होता है, प्लीज़ understand the bilateral relation and please understand what impact it will have, what decision should be made. So you should know an overall view, national, pan-Indian, international aspects से, bilateral relation के aspects से. So this way you should cover your current affairs also. I guess when there are people who ask me this question that if you want to be a part of the Indian Police Services, and हमने पहले ही decide कर लिया that our first priority would be Indian Police Service. You want to join the police services only. What should extra we do? So if you are committed, dedicated to join the Indian Police Services, to have this uniform, you should preparation wise for exam, reading and writing is not different because the exam is common. But if later on there are some physical aspects that require strengthening. अगर आप उस थोड़ा बहुत फिटनेस पे अपने ध्यान दें, like basic flexibility of the body, the strengthening of your body, toning up your muscles, running, that will not only help you to add something to your schedule the whole day. एंड जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो रनिंग बहुत एक अच्छी आदत होती है टू डी स्ट्रेस योर सेल्फ, टू start your day. And if you want to be a part of Indian Police Services, I'm telling you, you will have to have a very tough training, and mentally and physically you have to become very strong. So अगर आपको confirm है that this is the service I want to join, you can always work on your body, your exercising, your exercise routine, all these things. Apart from that, there are some particular questions regarding the parameters of eyesight and nognies and all that thing. If you are physically fit, there are not very huge parameters which will throw you out of the services once you are selected during the medical. So don't worry about that much, and please go through the notification, go through the requirements. अगर आपको लगता है कुछ ऐसी प्रॉब्लम है तो if there is a solution to it, please go for it. Otherwise you can deal accordingly. Now, so these are the things, and I think if there are any questions or any feedback, please let me know on the channel, or you can also write down to me. And hopefully everybody is keeping safe during pandemic. All the best to everyone. And please also the owner of the page had asked me to speak a word on the depression that people go through sometimes when they are continuously trying to give exam and prelims में क्वालिफाई हो जाते हैं, मेंस में नहीं होते हैं और बहुत लॉन्ग स्टडीज़ कर रहे हैं. तो आई वुड सजेस्ट देम दैट सी दिस विल build you up mentally. Civil services is all about determination and staying there on the ground. So do not back down, because do not leave the ground. This is a battlefield, and keep on working. If the strategy didn't work last year, please improve it. डिप्रेशन में अगर आपको लगता है कि कुछ डिप्रेशन हो रहा है या डीमोटिवेशन हो रहा है, प्लीज़ टॉक टू पीपल हु कैन मोटिवेट यू, वॉच वीडियोज़ दैट कैन मोटिवेट यू, डू सम मेडिटेशन, डू सम एक्सरसाइजेज, लिसन टू सम म्यूजिक. इफ़ देर इज़ अ डे आप 3-4 महीने लगातार पढ़ रहे हैं, एंड इफ़ यू वांट टू रिलैक्स वन डे, प्लीज़ डोंट स्टडी दैट डे, बट यू कैन. So this was my whole explanation of the strategy, and you can always customize your strategy, which you have to customize based upon your skills. And all the best to everyone. Thank you.